right? So, Yes. welcome to the 72nd episode of Wednesdays for Waste Warriors, WWW equals 5R. And I'm Anuja Bali, and I welcome Dr. Ashish Polkade from Pune. उनके उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बेस्ट है, so it's like BEST. I would request you to share about how आपने बेस्ट BEST नाम सोचा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हम वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोगों को बिग Right, big goals चाहिए, like really high next level goals, and best right, is right, really right. perfectly fitting. And my waste my responsibility के जैसे ही आपका भी काम है, so we would like to hear about your journey, how it started, and plus you are a PhD doctor, so आपने ये कैसे शुरू करने का सोचा, Yes, yes, बताइए। yes, yes. Thank you, Anuja, just for calling me on this Wednesday Waste Warriors program. So I'm really happy that such kind of initiatives are there, which will help other peoples also to get connected into this area of environment and let us know all of us that कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे किस मोड पे है. So that will help us to grow. That will help us to हमें मोटिवेट करते रहता है हर चीज के बारे में ना. So that's really a good thing. Very nice initiative that you are doing this. About me, just आपने पूछा इसलिए हम बेस से चालू करते हैं कि what is based. So based is a basically it was organization of proprietary organization. What is Bharat Eco Solutions and Technologies? That was its original name. But when I wanted to shift from proprietary to private limited firm, so I did not get a name of Bharat, because now Bharat is a like a it is like a used to be as a India. So Yeah. भारत को ये नहीं मिलता है. So then we need to change it to Based Eco Solutions and Technologies Private Limited. So that's how the Based evolved. This is a private limited firm which we had recently, like in April only, we had registered this firm. Otherwise, it was a Bharat Eco Solutions and Technologies. So my journey towards waste management or environment started way back in maybe while I was in a college only, because from the projects and those things I was always concentrated on such aspects wherein the environment can be get concerned. Like I did my graduation, post graduation and doctorate all in microbiology. So I did my initial education from Vidarbha region, Amravati, Nagpur. So graduation, post graduation from there, and then I came here for PhD. In between, I did a job at Rajasthan. There, I was working for the algal cultivation. So you might be knowing about the superfood, which we call as a spirulina and those things, Yes. Yeah. which is a high protein content. So for on that project, I was working for 1.5 years or so, and then since I wanted to do my PhD, I came here in Pune. My PhD was also on a PhD topic was also on a kind of waste matter only, because I work on a microbes which degrade hide. Hide means फ्लेड एनिमल. एनिमल को जब फ्लेड किया जाता है उसके बाद में जो स्किन होता है उसको Yeah. स्टोर करने के लिए 35% सॉल्ट यूज होता है. Yeah. एंड वी वांटेड टू रिप्लेस दैट टेक्नोलॉजी विद सम हर्बल और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी. And for that purpose, we need to know what are the microbes present on that and how it degrades that hide. So that's how I started working on it, and the same topic for my PhD, and then I continue with that. I finished up my PhD in 2006. Then I joined a Praj Industry. Praj Industry, wherein my major role was into a technology development in relation with the again few aspect was real towards industrial waste management, and another aspect was a PHB, like polyhydroxybutyrate production, and those things were there. But I did not stay there long back. So it was a 1 hour journey with Praj, a 1 year journey with Praj. And then I started my government job at National Center for Cell Science. So there I joined as a scientist, and I served there for 7 years. So there our main role was to collect the microorganism from all over the world and store it in a refrigerator for long-term uses for 20 years. So that's how the Wow. techniques were being developed. But while doing that, it was
firstly it was a government job, so it was very nice, very good, very appreciative when it comes around 2 3 4 years, because it was a setup years. So innovation was involved, different kind of protocols were involved, but slowly it become monotonous, and we feel that uh, इट वॉज इन एक चौकट होती है ना, वो चौकट में था कि वही करना है रोज, वो सेम वर्क करना है. सो वी शिफ्टेड माय फोकस टुवर्ड्स entrepreneurship, and I started my own organization. My first private limited firm I started at there, and then from 2014 I'm working on my own. But when I wanted to start on my own, then I thought that कि क्या ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर काम होना चाहिए. तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरत है अभी की इसमें, कि वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड बहुत ज्यादा जरूरत है. इट वाज नॉट देयर बहुत सालों पहले. अगर आप सोचोगे तो वेस्ट मैनेजमेंट में एजुकेशन का या एनवायरनमेंट में एजुकेशन की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी. इट वाज हैपनिंग एज इट इज, क्योंकि वहां पे कभी कंज्यूमरिज्म इतने जोरों से नहीं आया था, बहुत सारी चीजें नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे हम लोग ग्रोन अप होते गए, तो ऐसे ये होते गया कि इट शुड बी इन्वॉल्व इनटू द सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट चिल्ड्रन, उसके भी इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये इतने जोरों से फैल रहा है. अभी पूना की बात ले लो, तो पूना में अगर हम देखते हैं तो रोज का 2000 टन, मिनिमम 2000 टन तो कचरा निकलता ही है रोज का. तो अगर इसको कलेक्ट किया जाए तो कितने पहाड़ बन जाएंगे, मतलब वेस्ट के, और वो बन ही रहे हैं. तो इस फील्ड में जाने के लिए हमने काम किया, और हमने पहली जो मेरी फर्म थी विजन इकोलॉजी का प्राइवेट लिमिटेड, इट वाज बेसिकली वर्किंग फॉर वेस्ट मैनेजमेंट ओनली. बट इनिशियली हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया सोसाइटी वेस्ट के साथ में. सो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस, बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों, बिकॉज इट वाज अ बिजनेस. इवन इफ इट इज इन वेस्ट मैनेजमेंट, पीपल थिंक दैट कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, मतलब उसको एक ये दे देते कि ठीक है यार, मतलब इट्स लाइक अ सोशल वर्क, Social work. है ना. इट्स पीपल थिंक दैट इट्स लाइक अ सोशल वर्क, इट्स नॉट योर ओन वर्क. अगला एक्चुअली अगर इसको बिजनेस के माध्यम से देखना है, तो ये पूरा दृष्टिकोण हमको चेंज करना पड़ता है. आई स्टार्टेड विद द सोसाइटी बेस्ड मैनेजमेंट, वेयर आई स्लोली कम टू नो दैट इट्स नॉट going to run as a business, because there are multiple authorities which you need to approach for a single project. Then there are decision makers, कोई फिक्स नहीं होता है, और लाइबिलिटी भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है जिस चीज की होती हो. सो आई शिफ्टेड माय फोकस टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, एंड देन being maybe in a year we shifted it from a society waste to the industrial waste management. So BAST is basically now working in developing a technologies for the industries who are working in this sector. Every industry, everyone will need to go towards this sustainability, as per my thought process, कि अभी आगे का जो भी समय आने वाला है, हर एक को सस्टेनेबिलिटी के लिए तरफ देखना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी मीन्स वी कैन से एबिलिटी टू सस्टेन. लाइक Yeah. जैसे मैंने ये कहा था कि कोई भी चीज है, जैसे नॉर्मल ये कंपोस्ट ले लो, तो घर में हम लोग सब्जी लाते हैं, उस सब्जी को काट के सब्जी बना के सब्जी खाते हैं, बचा हुआ सब्जी फिर से जमीन में जाता है, जमीन में से वो कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट में से फिर से सब्जी आती है. सो इट इज इन अ सर्कुलर मोड. सो ये सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट हर एक चीज में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक बिजनेस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसके लिए फिर हम लोग काम करते हैं. तो जैसे बिजनेसेस है, जैसे डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, या फिर आप सिंपल एक प्लांट टिश्यू कल्चर का जो इंडस्ट्री होता है, उसमें हमने जो अभी अभी काम किया है. तो प्लांट टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री में एक जेल यूज किया जाता है, विच इज विद द न्यूट्रिएंट जेल. जैसे आपने देखा ना कि प्लांट्स जेल में लगाते हैं, तो Yeah, yeah. एक ऐसी छोटी बॉटल है जिसके अंदर, ऐसे छोटे बॉटल्स में या थोड़ी बड़ी होती है, उसमें आप प्लांट लगाते हो और अंदर जेल होता है. सो व्हेन दैट प्लांट ग्रोज अप टू सर्टेन लेवल, वो प्लांट को हार्डनिंग प्लांट में डाला जाता है, एंड देन जो जेल बचता है, इट इज ऑफ नो यूज, सो इट बिकम्स अ वेस्ट फॉर द Wait. इंडस्ट्री, राइट. सो ऐसा कितना वेस्ट बन सकता है. तो एक कंपनी जो पूना में है, सो सबसे बड़ी एशिया की फ्लोरिकल्चर कंपनी है, जिनके साथ में हम लोग काम करते हैं, के बायो प्लांट करके. तो वो कंपनी ऐसे रोज के 3 टन का वेस्ट उनका जनरेट होता है, 3 टन ऑफ वेस्ट रोज का. और वो वेस्ट का क्या होता है, तो इनिशियली जब हम लोग काम शुरू किया, अभी इस चीज को ऑलमोस्ट 10 years हो गए, 10 years बैक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम. सो दे वर डंपिंग इट इनटू ग्राउंड. एंड वेरी फॉर्चुनेट पार्ट वाज, जो उनके सीईओ है, ही वाज वेरी मच कंसर्न कि यार ये नहीं होना चाहिए.
I am doing that because I don't have an option. But Ashish, can you come up with the option? Because we were working with him for some microbiological aspect. So he said, "This is my pain. So can you remove it?" So then we started working on that. We work on a 5 kg of waste. Then we work on a 50 kg of waste, and then we develop a technology which can manage their 1 ton of waste daily. So वो यूनिट हमने वहां पे लगाया, फिर 1 टन का 2 टन हो गया। अभी हम लोग रिसेंट उनके साथ में काम कर रहे हैं, वो 5 टन पर डे का यूनिट के ऊपर काम कर रहे हैं। सो दैट that is what the problem identification, then working on a problem and then giving a solution, which makes my life easy, क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है कि I had given some solution and through which something is helping to this mother earth. So that is very much important, right? एंड इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है कि आपने एक पेन पॉइंट को रिजॉल्व कर दिया। मतलब दैट्स रियली अ वेरी लकी सिचुएशन, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और भी बहुत सारे आप इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो हम अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर रियली टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, चाहे एयर पोल्यूशन बोलें या वाटर पोल्यूशन बोलें। सो इससे भी रिलेटेड आप कुछ लाइक इनोवेट कर रहे हैं? हाँ, तो मेजर पार्ट है कि मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वेस्ट वेस्ट क्यों होता है। मतलब जब हम सोचे कि बहुत डीपर थॉट है ये, कि अगर हम वेस्ट के बारे में सोचे, ये यहाँ पे पेन है, ये पेन वेस्ट कब बनेगा? जब इसके अंदर की रिफिल नहीं रहेगी, है ना। तो रिफिल नहीं रहेगी तो ये वेस्ट बनेगा। हम इसको वेस्ट की टर्म देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि दिस इज नॉट यूजफुल फॉर मी टू राइट। पर्पज सॉल्व नहीं कर रहा है। किसका पर्पज सॉल्व नहीं करना? मेरा पर्पज सॉल्व नहीं कर रहा है। बट इज इट सॉल्विंग अ पर्पज ऑफ अ इंडस्ट्री विच इज अ रिसाइकलिंग इंडस्ट्री and which can make another pain out of it, or which can make another raw material of plastic from it? So yes, it can be possible, है ना। so other industries के लिए ये वेस्ट नहीं है, उनके लिए रॉ मटेरियल है। तो जहां पे थॉट खत्म हो जाता है वहां पे वेस्ट क्रिएट होता है। अगर हमने वो थॉट को कंटिन्यूएशन किया तो वो वेस्ट नहीं रहता। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ में ही हमने मैक्सिमम जगह पे ये इनोवेशन हम ला पाए। मतलब दैट्स द वे। जैसे हमने अभी पतंजलि आयुर्वेद, जो भारत की अच्छी कंपनी, इनके साथ में हमने काम किया कि जिनके पास में 12 ऐसे यूनिट है कि जो अलग अलग प्रकार के वेस्ट बनाते हैं। वेस्ट मतलब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट उससे वेस्ट जनरेट होता है अलग अलग प्रकार का। जैसे एलोवेरा की जेल बन रहा है तो एलोवेरा का वेस्ट जनरेट हो गया। एप्पल का जूस बन रहा है तो एप्पल का पल्प का जो ये है वो जनरेट हो गया। जड़ी बूटी का कुछ बना रहा है तो जड़ी बूटी के जो बचा हुआ पार्ट है बॉईल करने के बाद में वो जनरेट हो गया। अब इन सब के कैरेक्टर्स अलग है, इन सब की चीजें अलग है। नॉर्मल इंडिविजुअल डू नॉट नो दिस। लाइक मैं ऐसे बोलूंगा कि यहाँ पे 2 प्रकार के लोग काम करते हैं मेजरली। वेस्ट मैनेजमेंट के बड़े टेक्नोलॉजी पार्ट जो है वो एक इंजीनियर्स ने ये किया है। तो वहां पे क्या होता है, एक यूनिट बनाया जाता है कि ये यूनिट है, ये बायोगैस का यूनिट है। बट उसको कैसे चलाना है, माइक्रोब्स को क्या चाहिए, माइक्रोब्स कैसे किस मोड पे काम कर सकते हैं, इसमें से अगर बायोगैस बनाना है तो कैसे उसको डालना है, ये थोड़ा सा अभी भी उसके बारे में मैं कहूंगा कि एजुकेटेड नहीं है। या ये जो बिजनेस है ये रेगुलेटेड भी नहीं है, एजुकेटेड भी नहीं है। तो क्या होता है कि आ गया पूरा कचरा तो डालो, इसमें इतना डालने के लिए बोला है उतना डालो, फिर कुछ दिनों बाद में जो वो परफॉर्मेंस बंद कर देता है। सो वी रियली डू नॉट नो कि उसको कैसे क्रिएट किया जाए। तो वो काम हम करते हैं कि जहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं हर एक सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट है, उसमें क्या कैरेक्टर्स है, कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, उसमें कौन से क्वालिटीज है, जिसके माध्यम से हम लोग उसका कुछ रेशियो बना के अगर उसमें डालें तो उसका जो आउटपुट है वो ज्यादा अच्छे से आ सकता है। तो क्या हो गया कि वेस्ट से हम लोगों ने बायोगैस बना लिया, या वेस्ट से हम लोगों ने कंपोस्ट बना लिया। डेयरी ऑर्गेनाइजेशन से इतना सारा स्लज बनता है, टन्स ऑफ टन्स में, मतलब स्लज तैयार होता है। सो वो स्लज लेके हम लोग उसका कंपोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल, मतलब उसमें जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ उसको कन्वर्जन करने की देरी है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या टॉक्सिक ये होता है, हाँ टॉक्सिक होते हैं, हर एक जगह पे टॉक्सिक होते हैं। हम लोग जहाँ पे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी, एमपीसीबी, इनके जो नॉर्म्स होते हैं उसको देख के हमको प्रोसेस में वेरिएशंस लाने होते हैं। सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्पेसिफिकली बेस्ट जिस वेस्ट पे काम करता है
वो मैक्सिमम वेस्ट ये ऑर्गेनिक या वी कैन से फूड इंडस्ट्री वेस्ट इस टाइप के हैं जो बायोलॉजिकल वेस्ट है एंड विच कैन बी डिग्रेडेड। तो उस मोड पे हम काम करने के बाद में उसके जो टेस्टिंग पैरामीटर्स आते हैं दैट फिट्स इनटू दिस नॉर्म्स ऑफ एमपीसीबी एंड सीपीसीबी एंड दे कैन डेफिनेटली इंडस्ट्रीज विल बेनिफिट out of it as they need. So that's the way. So you are saying that आप ज्यादातर Sorry. wet waste related कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स पे काम करते हैं। जैसे हम घरों में बोलते हैं कि वेट वेस्ट यानी छिलके और Right. मतलब वो एक हाउस या एक इंडिविजुअल लेवल। Biodegradable we can हाँ, say. Right. जस्ट Right. वो Right. रहता है बायोडिग्रेडेबल। Right. ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं, और मतलब जी. वो वाला जो एक छोटा सा घर का कंपोस्ट बिन हो गया। लेकिन Right. यही चीज जैसे आपने बोला मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, हाँ. ये सब जो है ऑफ कोर्स टन्स में निकलता है वो। तो आपके पास टीम ऑफ इनोवेटर्स एंड साइंटिस्ट है जो आप लोग कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम्स इवॉल्विंग हैं, Very right. राइट? Right. Right. दे आर Right. नॉट लाइक एक बार बना लिया अपन ने कोई सोल्यूशन तो वो एक्स को भी चल जाएगा, वाई को भी चल जाएगा। Right. वेज Right. Right. होटल का अलग प्रॉब्लम होगा, नॉन वेज होटल का अलग प्रॉब्लम होगा। इट्स रियली मतलब सॉल्यूशंस एनवायरनमेंट में इतने ज्यादा कस्टमाइज है कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, समझ लीजिए कि सिमरगढ़ रोड के ऊपर हमारा ये ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। आप में भी अगर कैंप में बैठे होगे तो हर जगह का अगर वेस्ट देखोगे तो उसमें भी डिफरेंस आएगा ट्रू। कि जो क्रिएशन है, जो हैबिट्स है लोगों की, जो जिस हिसाब से कंजम्पशन है उस हिसाब से वेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे अगर गांव में जाओगे तो गांव में अलग वेट और ड्राई का कंपोजिशन रहेगा। अगर शहर में जाओगे तो शहर में अलग रहेगा। मॉल्स में जाओगे तो मॉल्स में और ज्यादा अलग वे पे होगा। तो ये कस्टमाइज सॉल्यूशन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें भी मोटा मोटी हम लोग सेग्रीगेशन कर सकते हैं उस मोड पे। जैसे अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है कि जो को वेस्ट को भी प्रोसेस कर सकती है। मतलब वेट और ड्राई अगर साथ में हो तो उसको भी प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजीज अभी आ रही है, ऑल्दो इट इज नॉट कम्प्लीटली इवॉल्व, बट यस दैट इज देयर कि जहाँ पे हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो और दूसरा एक चीज बताऊं, जैसे आपने अभी पूछा कि मॉल का वेस्ट जो होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, तो ऐसे ही थॉट प्रोसेस से हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे पूना के एक 35 किलोमीटर के आसपास एक गांव है जहाँ पे हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके। तो जैसे आप बोलते हो कि माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैसे ही हम लोग कहते थे कि माई नेशन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो माझा देश माझी जवाबदारी, ये जो टाइटल था उस मोड पे। तो उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पे एक सीएसआर का प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उस गांव में जब हम गए तो मैंने जब देखा, जब मैं पहली बार विजिट के लिए गया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा है। देन आई मेड अ स्मॉल एक्टिविटी कि मैं खुद थोड़ा समय निकाल के पूरे गांव में घूमा और वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने कलेक्ट किए कि कहीं नदी के पास में कचरा पड़ा हुआ है पूरा, इसके कहीं आंगनवाड़ी मतलब सीख बच्चे आते हैं, बच्चे सीखते हैं और वहाँ पे पूरा कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, या कहीं हेल्थ सेंटर है उसके बाद में पास में कचरा पड़ा हुआ है, ये सब का डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट करके उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो उनके पास में और क्या है, तो उनके पास में ऑलरेडी एक गोवर्धन का प्रोजेक्ट लगा हुआ था, बायोगैस का प्रोजेक्ट गांव के बाहर लगा हुआ है। इतना सब है, क्या नहीं है क्या है, ये सब एनालाइज किया और हमने पूरा एक प्रोजेक्ट बना डाला उसका। हमने ये नहीं सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या कौन कैसे करेगा, कुछ नहीं। हमने सोचा कि इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब डालो, जिससे जैसे भी डाल सकते हो वैसे डालो, और फिर उसका क्या करेंगे वो सब निकाल के हमने उसका प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग 1 करोड़ 60 लाख का मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। और वो बनाने के बाद हम घूमे कि अभी अभी इसके लिए फंड कौन करेगा। कोई ग्राम पंचायत दे दे, कोई जिला परिषद दे दे, कोई सीएसआर दे दे, कोई अलग दे देने। देखो पैसे हमारे देश में प्रॉब्लम कैसे है, पैसों की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ओनली चीज, एक ही चीज की कमी है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट और एटीट्यूड है ना। तो वो जो माइंडसेट और एटीट्यूड है ना वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जब तक नहीं आएगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग इतने इंटेंशन से करते हैं उस चीज को, लेकिन उसको अगर एक्शन में लाना है तो हर एक इंडिविजुअल का माइंडसेट चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और उस पे भी बेस्ड काम करता है। मतलब बेस्ड में हम लोगों के साथ में मेरे जो पार्टनर है वो सूरज भगत करके, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट, और हम लोग साथ में ही उसी वजह से आए, क्योंकि हमको बाहर का कचरा तो हम संभाल लेंगे यार, लेकिन जो मन में कचरा बैठा है ना, जो दिमाग में कचरा बैठा है ना, उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ चीजें बहुत बड़ी लेवल पे चाहिए। तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से, हमारे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो सूरज जी ने हमारे बहुत बहुत वे पे लोगों के साथ में काम करके एटीट्यूड चेंज, बिहेवियर चेंज के मोड पे काम किया है। तो वो ऐसे हमने प्रोजेक्ट बनाया वो गांव के लिए। एंड देन वी सर्च फॉर फंडिंग अलग अलग जगह पे जाके, किसी ने डस्टबिन दे दो, किसी कोई ड्राई वेस्ट का प्रोजेक्ट खड़ा कर दो, कोई वेट वेस्ट का जो गोवर्धन का प्रोजेक्ट है उसको इवेलुएट कर लो। तो इस मोड पे हमने काम किया। मैं नहीं, ये नहीं कहूंगा कि ये पूरा हम लोगों ने काम कर लिया है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा रेडी है। अभी कोई अगर करना चाहे, कि कोई अगर बोले कि नहीं हमको CSR में पैसा डालना है, आ जाओ ये काम कर लो, तो दैट इज व्हाट इज नीडेड। मतलब कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंसेप्चुअल मोड पे अगर रेडी है, इसके ऊपर बेनिफिशियरीज पता है हमको कि इतने गांव का एक 6 गांव का हमने क्लस्टर उस टाइम पे क्रिएट किया था। सो इट इज Mhm. डूइंग वंडरफुल वे में हम लोग ये काम कर सकते Do you want to have some water? थिंक आपको ड्राई, गला सूख रहा है बार बार। लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे तो बहुत ही ऐसा होपफुल फील हो रहा है कि एक साइंटिस्ट बेंड ऑफ माइंड से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो कितने डिटेल्ड, कितने डिटेल्ड, मतलब आप माइक्रो बोलते हैं तो इट्स रियली सो मच इज थॉट अबाउट। हैं। यस, यू नो, जब हम ए राइट। टू जी बोलते हैं तो सो मच इज थॉट अबाउट। एक सेल्स या मार्केटिंग का प्रोजेक्ट होगा तो दे विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट लाइक फिगर्स और काइंड ऑफ प्लीजिंग थिंग्स, बट वेरी ट्रू। व्हेन समवन इज टॉकिंग अबाउट दैट लेवल कि आप पॉइंट डॉट से लेके आप इम्पैक्ट तक कर रहे हैं, सो आई एम श्योर इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग journey, and of course with a lot of challenges. So आप शेयर करना चाहेंगे लाइक कुछ चैलेंजेस जिससे कि हम आपसे सीख सकें कि कैसे हमको गिव अप नहीं करना चाहिए? चैलेंजेस तो बहुत है, एनवायरनमेंट और ये वेस्ट मैनेजमेंट और इस एस्पेक्ट में। मैं एक्चुअली ऐसे कहता हूँ कि बेसिकली कुछ दिनों पहले हमने स्टूडेंट्स के साथ में भी काम करना शुरू किया, कि स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कुछ करियर्स इन सस्टेनेबिलिटी इस टाइप का हमने एक प्रोग्राम किया था। क्योंकि मैंने ये जाना कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ, जब मैं साइट्स पे जाता हूँ, जब मेरे साथ में कुछ बच्चे मैंने अपॉइंट किए हुए रहते हैं, सो इवन मेरे साथ में आने वाले जो लोग हैं उन्होंने 1 महीने में, 2 महीने में जॉब छोड़ दी है। ये भी मैंने देखा है। क्योंकि क्यों क्यों पोल्ट्री में जाता हूँ, पोल्ट्री के अंदर जाना होता है, जहाँ पे डिसेक्शन होता है, जहाँ पे पोल्ट्री में ये काटा जाता है। तो Yeah. मतलब पीपल आर थिंकिंग दैट दिस जॉब इज वेरी डर्टी। सो ये जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा मैंने इसमें देखा है, कि नो वन वांट, मतलब किसी को उसमें हाथ नहीं डालना है। अगर आपको कचरा साफ करना है तो कचरे में तो हाथ डालना पड़ेगा। ऑटोमाइजेशन हमने देखा, अभी वो इसमें दिखाया था उन्होंने कि किस हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं। अभी भी वो नेसेंट स्टेज पे है। सो अगर उसको, उस टेक्नोलॉजी को जिसमें हम पूरा ऑटोमेट कर लें, तो उस मोड पे जाने में हमको अभी काफी टाइम है। और हमने ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। देखो ये जो धरती है, ये बहुत कुछ दे रही है हमको। मतलब धरती में दिया है, पानी दे दिया है फ्री में, हवा फ्री में दे दी है, हमने उसको कॉस्टिंग लगा दिया, लेकिन एक्चुअल भगवान ने तो उसको फ्री में ही दिया है ना। ये सब रिसोर्सेस हमको फ्री में दिए हैं। सो अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ थॉट प्रोसेस अबाउट दोज रिसोर्सेस टू बी प्योर, तो फिर कौन रखेगा? तो हम लोग यहाँ पे आए तो हमको ही वो करना पड़ेगा। तो ये थॉट प्रोसेस जब तक क्रिएट नहीं होगा हर एक इंडिविजुअल में, तब तक हम लोग इसमें से नहीं निकल सकते बाहर। Yeah. तो हमारा रोल यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचाए। लेकिन चैलेंजेस इसमें आते ही है, क्योंकि हर कोई इस मोड पे नहीं होता। जैसे हमने एक छोटा सा ना डोमबिन हमने बनाया, डोमबिन मतलब हरी बिन हम उसको बोलते हैं। हरी बिन मतलब एक कंपोस्टिंग का यूनिट है, कि एक 4 लोग वहां पे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो हमें उसका सेल्स देख रहा था, सेल्स फिगर जो हमारे यहाँ पे आते हैं। तो इट वाज, मतलब वो प्रोडक्ट जो बना वो मेरे सोशल, मैं ज्यादा सोशल हूँ, मतलब Mm. एंटरप्राइजिंग से ज्यादा मैं सोशल ज्यादा हूँ। तो उस मोड पे मैंने वो प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उसका सेल ज्यादा नहीं जाता। कौन लोग लेते हैं? सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट, जिनको ये मन में है। मतलब आप अगर 2000 फ्लैट वाली सोसाइटी में भी चले जाओ, और उसमें पूरे जगह पे अगर आप मार्केटिंग कर लो, फिर भी 2 या 4 लोग लेंगे, कि जिन लोगों को उसके बारे में आस्था है,
और उनको Yes. लगता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, और वही लोग मेंटेन करेंगे। वो लोग कॉल भी करेंगे 1 साल बाद भी कि आपका जो बिल दिया था ना वो चल रहा है ना। बट अदरवाइज एवरीबडी इज नॉट ऑन दैट मोड। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीजें हैं तो हमने हमने हमको ये कोशिश करना चाहिए एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, हमने ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको ज्यादा से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ईज में ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं, सो दैट इट विल ग्रो हेड, अदरवाइज नॉट। अभी हम लोग एक स्मार्ट एनवायरो करके कंपनी है, उनके साथ में हम एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग होटल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रोसेस करने की एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि जो होटल का वेस्ट है वो कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट वाटर कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ द होटल। अभी का प्रॉब्लम यह है कि उनको वो वेस्ट वो उनके यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि जगह की कमी होती है, और कहीं कोई लेके जाना हो तो वो सिस्टम्स उनको अभी नहीं मिल रहे क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने 100 किलो के ऊपर का जो बल्क वेस्ट है उसके ऊपर ये किया है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो क्या एक छोटी सी वॉशिंग मशीन टाइप में मशीन होगी जिसमें हम अपना वेस्ट डालें, उसका लिक्विड बन जाए, और लिक्विड आइदर एसटीपी में जा सकता है या उसको कोई बायोगैस के लिए लिया जा सकता है। तो ऐसे कोई इजी टू यूज अगर कुछ बना है टेक्नोलॉजीज के मोड पे, तो दैट विल बी रियली ऑन अ अप्रिशिएटिंग मोड। तो वो चीजें हो सकती है। तो चैलेंजेस से ही मुझे लगता है कि चैलेंजेस से ही हम लोग काम करते हैं। मतलब Innovate. चैलेंजेस नहीं हो तो हम लोग काम नहीं करेंगे। बिल्कुल. तो जो भी हुआ है लाइफ में वो चैलेंज आने के बाद में, हाँ, सिर्फ उसके लिए देखने का जो अप्रोच है वो उस मोड में चाहिए कि ये चैलेंज जो है ना ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और इसके ऊपर अगर हम कम काम करें तो बहुत चीजें चेंज हो सकती है। ये अप्रोच पे अगर हम लोग काम करें तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेस पे ऊपर जाते हैं। ये जो आज का मुझे लगता है कि जो हम लोग आज की मीटिंग है ये वेस्ट मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरल एस्पेक्ट भी कैसे होना चाहिए ना, वो भी उस मोड पे आता है। Yeah. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम लिए, तो वो हम्म. सस्टेनेबिलिटी के लिए करियर में जब हमने बोला तो हमको रिस्पांस नहीं मिला। हमने हम्म. इमीडिएटली टाइटल चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट टू प्रोफेशनल। हम्म. हमने बोला कि प्रोफेशनल बनना है आ जाओ। मतलब क्या होता है कि उसको वो कनेक्ट होते हैं, ऑल दो काम वही करना है। Yes. ऐसे नहीं कि मेरे पास में आएंगे तो मेरे पास में वही मिलेगा क्योंकि जो मैंने लाइफ टाइम किया है वही मिलेगा, आई कैन नॉट गिव यू अदर देन दैट। लेकिन जब अप्रोच चेंज हो जाता है तो फिर वो थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चेंज होती है। तो एस टू पी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और ये भी हमने इसलिए निकाला क्योंकि जब साइट पे जाता हूँ तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में आज। जो लोग लगते हैं वो सिर्फ इंजीनियर्स लगते हैं, इंजीनियर हो गए तो इंजीनियर लग जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंस्टॉलेशन तक ही काम कर पाते हैं। जब बिल्कुल. वो जब वो प्रोसेसिंग की बात आती है तब उस फील्ड में जिसको नॉलेज है वो आदमी नहीं होता, वो ट्रेन नहीं होता, उसको छोटे छोटे जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे फील्ड में, जैसे टीएस है, टोटल सॉलिड्स क्या होता है, पीएच क्या होता है, किस हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है, ये सब अगर नहीं पता हो तो वो एक्सपर्ट्स की कमी होती है। इसलिए मैंने एक सोचा कि क्या मैं बच्चों को एक्सपर्टाइज देके उनको इस फील्ड में एंट्री करवा सकता हूँ। सो लास्ट मुझे लगता है लास्ट 2 साल में हमने ये प्रयास किया, 450 बच्चों तक के हम लोग पहुंचे, और 450 बच्चों में से हम लोग ऑलमोस्ट 40 लोगों को हम लोग प्लेस कर पाए अलग अलग सिचुएशन पे। सो दैट इज व्हाट Well, इज गुड पार्ट, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पार्ट उतना ही जरूरी है उस मोड। something like this. Something like this is बिल्कुल बहुत. ये अगर हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं वेस्ट का या किसी भी चीज का, तो राइट, मैनेजमेंट करने के लिए लोग चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, और ट्रेन्ड स्किल्ड लेबर्स चाहिए. वो कहाँ से आएंगे? राइट। आपका साउंड नहीं आ रहा है अनुजा जी, वी कांट हियर यू। सुनीता मैम, आपका आवाज आ रहा है मैडम का? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। यस। मेरा इंटरनेट खराब है क्या? यस यस मैम, एक्चुअली अभी नहीं आ रहा था आवाज आपका, योर ब्लैंक। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। फिर से फ्रीज हो गया। हेलो. हेलो। हाँ, फिर से बीच में फ्रीज हो गया था मैम। अभी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है अभी। ओके अभी ओके. आवाज आ रही है, यस। ठीक.
सो जैसे कि आपने कहा कि हमें लोगों को, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है और उनको इस फील्ड में लाना है तैयार करके। हम्म। वी नीड राइट। स्किल्ड पीपल, स्किल्ड स्किल मैन पावर, राइट। मैनेजर्स, एंड देन मैनेजर के बाद में लाइक यू सेड इंस्टॉलेशन पे काम रुक जाता है, फिर मेंटेनेंस होता है। राइट। मेंटेनेंस के बाद लाइक कांस्टेंट नो हाउ होती है, कुछ नए लोग आ गए एग्जैक्टली। समझ लो बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, तुमको आप वापस से अवेयरनेस दे रहे हो, वेरी ट्रू। आ रहे वेरी हो, ट्रू। कुछ नए लॉस चेंज हुए हैं या कुछ नई उन्होंने रॉ मटेरियल में चेंज किया तो कुछ नया ट्वीक होगा। सो दैट्स राइट। कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस जो है, लाइक लाइफ के हर जगह होता है। लेकिन हम वो किताब लेके नहीं बैठ सकते कि अच्छा ये सन 2000 में किताब छपी थी, बस वही लो और वही पढ़ो और उसके वेरी हिसाब। ट्रू। So that is something on that lines. Iti Skill School is also trying to do, where we वेरी are गुड। skilling students from school age groups to understand climate action. कि climate action क्या होता है और वो कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जब वो बड़े होंगे, 12th में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे, तो उनको वो डिसीजन बनाने आसान होगा कि मुझे ये चीजें ऑलरेडी आती है। सो वी टेल देम कि हर किसी को प्लम्बिंग आना जरूरी है ताकि पानी बच सके। तो आपके घर में अगर नल लीक हो रहा है, आप 150 रुपए 300 रुपए का प्लम्बर बुलाओगे, उसके बदले में आप खुद ही कर लो, तो आपके पास पार्ट टाइम जॉब आ गया है। राइट। आपके पड़ोस वाले आपको बुला सकते हैं, आप 100 रुपए में काम कर सकते हो। राइट। तो अगर हम कम्युनिटी के सारे लोगों को, लाइक यूएस में तो ये बहुत कॉमन है कि लोग अपने घर का सब, इलेक्ट्रिसिटी से लेके कारपेंट्री से लेके सब काम खुद ही करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू कॉल समवन ना, $150 में तो वो सिर्फ विजिट ही करेगा। वेरी सो ट्रू। अगर हम ये चाहते हैं, हम उनको वो एक बैंड बना देना चाहते हैं दिमाग में कि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि पानी बचाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये जो छोटे छोटे वोकेशनल, मतलब आई थिंक हमने उसको अच्छे से काइंड ऑफ मार्केट में रखा नहीं उन स्किल्स को, या उसको कि हम सिर्फ हम नहीं करेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। वेरी सो ट्रू। अब चाहे डीवाई पाटिल हो या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, अगर हम उनके पास जाके सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सो दे ओनली लुक एट इट एज एन एग्जीक्यूटिव जॉब। राइट। But we have to start from scratch, which is knowing how to do all this, right from plumbing, electrician, ताकि you become that maker mindset. वेरी ट्रू। तभी आप इनोवेट कर सकते हो, क्योंकि जिसको सब कुछ आराम से मिल जाता है, प्लेट में रखा रखा है, वो कहाँ से इनोवेटर बनेगा, एग्जैक्टली। है ना? एग्जैक्टली, सही है, सही है। तो सही इन है। लोगों को कुछ एंड स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो हमें उनको स्ट्रगल बना के देना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रगल। राइट, 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 राइट। सो बहुत जरूरी है, मतलब ये चीजें बहुत जरूरी है। और इस मतलब इस फील्ड, मैं ऐसे बताऊं कि अगर सस्टेनेबिलिटी ये फील्ड को लिया जाए तो अगला जो फ्यूचर है ना, ये पूरा सस्टेनेबिलिटी पे ही बेस्ड रहेगा। यस, क्योंकि अभी वो गोल्स ला लिए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट ईट अ कंप्यूटर ना, मतलब उसको तो आप नहीं कर सकते। अनटिल एंड अनलेस आप हर चीज में सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोचोगे तो ये काम नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वेस्ट मैनेजमेंट इसमें रिस्पेक्ट नहीं है। वो तो एक स्टोरी बड़ा ये है कि कचरे मम्मी कचरे वाला आया है ना, क्या वो जो पार्ट सफाई। होता है, सफाई वाला आया है, नहीं बोलना है कचरे वाला आया है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर मैं इसी इसी बेस पे जब मैं बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने जाता हूँ या कुछ बोलता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ, मैं एक फोटो लेके जाता हूँ, मैं एक जस्ट मिनट दिखाता हूँ आपको कि ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अवार्ड्स लगे हैं, यस। है ना। तो ये सब हमारे मिले हुए अवार्ड्स है। तो मैं ये ऑफिस में इसलिए लगा के रखा हूँ, कोई भी आता है तो पूछता है कि ये क्यों ऐसे है, तो मैं बोला ये तो मैं प्रेजेंटेशन में लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ? क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट वालों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ऐसे बोल रहे हो ना। सो आई हैड प्रूवन दैट कि वेस्ट मैनेजमेंट में आप काम करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे, सब कुछ चीजें यहाँ पे मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा एक एक कंसल्टेंसी का जो चार्जेस होते हैं वो मतलब लाखों रुपीस पे है। मतलब एक छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी बोलो तो 8 लाख 10 लाख का रुपए का प्रोजेक्ट होता है। सिर्फ विजिट्स करते हो, क्या मिला है? एक्सपीरियंस मिला है, एक्सपीरियंस का पैसा है जो भी आप करते हो। मतलब एक आधी मशीन में अगर कुछ बिगाड़ हुआ है तो वो बंदा आता है और एक 50,000 रुपए का विजिट करके चला जाता है, वो सिर्फ एक नट बदलता है, वो नट का कॉस्ट 50,000 नहीं होता है। वो उसका जो एक्सपीरियंस उसने लिया है पूरे
लाइफ टाइम में कि क्या ये मशीन क्या काम करता है, तो उसका वो पैसा होता है। तो जी वेस्ट मैनेजमेंट ये फील्ड इतना ज्यादा बूमिंग होने वाला है कि इसमें पैसा बोलो तो 40,000 करोड़ का तो बजट है स्वच्छ भारत अभियान का। और क्या मतलब बताएं, वो 40,000 करोड़ में से 1 करोड़ भी खींच लो तो भी बहुत बड़ी चीज है ना। तो अलग अलग वेज है, लेकिन उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना होगा, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम करना होगा, तो वो चीज हम लोग ला पाएंगे ऐसे बिल्कुल मुझे लगता है। तो इस मोड पे हम लोग अभी शुरू है, मतलब ये काम और ये एक सिंगल व्यक्ति का नहीं है। अभी जब जैसे हमने बात किया पूरे इसके ऊपर, तो आपने बोला कि ये काम होना चाहिए, तो ये अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसमें टीम चाहिए, इसमें लोग साथ में चाहिए, तो ही फिर वो काम हो पाएगा वेस्ट मैनेजमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। यस। जैसे अभी हमारे साथ मंजरी और वैशाली जुड़ी हुई हैं। हाँ हाँ। आज ही मैंने वैशाली के साथ बात की थी और मंजरी के साथ पहले भी बात की थी अबाउट कंपोस्टिंग, क्योंकि राइट अगर हम जब वेस्ट कब बनता है, जब कचरा मिक्स हो जाता है। राइट हम राइट उसके राइट पहले के स्टेप के बारे में बात करते हैं कि सेग्रीगेट एट सोर्स। राइट। सेग्रीगेशन एट सोर्स अचीव हो गया तो आपने आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। वेरी ट्रू। उसके बाद में आपने कंपोस्ट बनाया या गोबर लाइक बायोगैस बनाया या बायो एंजाइम बनाए, तो राइट। आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो अगर वेरी ट्रू। देखा जाए तो देर आर सॉल्यूशंस एंड दे आर लाइक पक्का सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली। आपको कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं कंपोस्ट करने के लिए। वेरी ट्रू। बट वेरी। दैट बिहेवियर चेंज, हम भी बिहेवियर चेंज के ऊपर इसलिए फोकस करके काम कर रहे हैं क्योंकि आज हम बोलेंगे ये अच्छा है, आप बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, उसके बाद में रात गई बात गई। सो नहीं, उनको वो कंसिस्टेंसी और वो बहुत कम होते हैं। जैसे आपको पता है क्या, एक क्लास में अगर काम सीखने वाले बच्चे हो, तो समझो एक 40 लोग हैं जो पीजी कर रहे हैं, तो उसमें से 4 या 8 लोग ही ऐसे होते हैं कि जो प्रो होते हैं, और वो उसी फील्ड में डट के रहेंगे और उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे अभी हमारे लीडर्स क्लब का भी मैंने आपको आंकड़ा बताया, 650 लोग आए, लेकिन वैशाली वॉज द पर्सन हु कंसिस्टेंटली वर्क ऑन दैट। उसने तो पहले साल में ही फ्लावर कलेक्शन इतना, मतलब सूरत में और उधर जाके, खुद जाके हर जगह पे जाके किया, सब कुछ मैनेज किया। उसके मैंने कुछ वीडियोस भी अभी उसने इसके लिए किए थे। मतलब दैट इज अ प्रो एक्टिविटी, की समझ में तो आ गया है, समझ में तो हर कोई आता है, मतलब हर कोई सेशन में आता है सब कुछ, लेकिन एक्शन लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब व्हेन इट कम्स टू अगर अगर आपको रिजल्ट देखना है तो एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, मतलब वो चीज होना यस चाहिए। यस बिल्कुल। Yes. हमारा सर्कुलर वाला जो लूप है हम उसे बोलते हैं फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन। अवेयरनेस टू जब एक्शन। तक वो एक्शन में बदल नहीं जाएगा तब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वेरी ट्रू। लाइक एवरी टाइम वी टॉक अबाउट एनीथिंग, हम बोलते हैं ओ लेट्स डू एन अवेयरनेस सेशन। हम अब अवेयरनेस से ही हर बार हमको एबीसी चालू करना पड़ता है। लेकिन अब वेरी ट्रू। टाइम आ गया है कि अवेयरनेस तो इतनी ज्यादा हो गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड यू नो ऑल दीज अदर थिंग्स। लेकिन अब एक्शन का टाइम आ गया है बिकॉज इट्स गेटिंग टू लेट। हम लोग राइट। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना टाइम वेस्ट करना, लैंड वेस्ट करना, हमारा पानी वेस्ट करना। सो थैंक यू सो मच। वेरी आप ट्रू। सेशन खत्म होने से पहले आप अगर कुछ जो इसका वीडियो देखेंगे उनके लिए अगर आपके पास कोई मैसेज है तो प्लीज शेयर करिए। हाँ, मैसेज एक ही है कि जो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस, जो भी आप काम करते हो। हालांकि मेरे लाइफ में भी मैंने बहुत अलग अलग एस्पेक्ट पे काम किया है, लेकिन कंसिस्टेंटली किया है। तो कंसिस्टेंटली करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं वहां का डेंट आ ही जाता है। मतलब अब आप देखो, पानी का बूंद भी अगर पत्थर पे गिरता है, कंसिस्टेंटली अगर गिर रहा है, तो इट विल मेक अ ग्रूव इन इनसाइड दैट स्टोन, राइट। तो वो अगर आपको इम्पैक्ट अगर लाना है, तो वो कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक थॉट प्रोसेस, एक मन में अपने अ, अ, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर पीढ़ी के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा ये बताऊंगा, एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब जब मैंने शुरू किया, तो उसके पीछे की एक छोटी स्टोरी है कि जिस जिस हिसाब से मैंने शुरू किया। मेरा ओन कजिन है कि जो गांव में रहता था। ही वॉज 45 years old just like me before 3 years. He was 3 4 साढ़े 3 4 साल हो गए। तो जो
एक मतलब मुझे पता था कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन एक दिन फोन आया कि ही इज क्रिटिकल, और फिर हम लोग उससे मिलने गए। रात के समय में जब मिलने गए तब मैंने देखा कि उसका जो मतलब उसको जो डिसीज हुआ था, मतलब वो उसमें निकल गए उसी दिन, उसी रात को उसका डेथ हो गया। बट जब मैंने डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने ऐसे बताया कि इसको लिम्फोसेमा करके एक डिसीज हुआ है, कि जो आ, होता है, उन्होंने उनके लैंग्वेज में बताया। फिर मैंने उसके ऊपर गूगल किया, बाकी सब चीजें ढूंढी। ही वॉज लिविंग इन अ विलेज एरिया, हम्म। गांव में रहते थे, अच्छा खासा खेती करते थे, कोई मतलब ये नहीं था, खाना पीना सब बढ़िया था। फिर भी ये चीज उसके लाइफ में क्यों आई? तो जब मैंने उसका ट्रेस किया तो वो लास्ट में पोल्यूशन ही आया। तो अगर मतलब बीइंग अ डॉक्टरेट, बीइंग अ पीएचडी, मैं कुछ नहीं कर पाया लास्ट मोमेंट पे। मेरा खुद का मतलब भाई है जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, इतना सब मैं करता हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया उस दिन, और उसको जाते हुए देखने के अलावा मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था। छोटा सा एक, जब खेतों में होता है ना, वो धान को सफाई करते हैं, उसका एक तिनका, छोटा तिनका नाक से अंदर चला गया, लंग्स में जाके बैठा और लंग में उसने सेप्सिस कर दिया। तो पोल्यूशन ही है, या पोल्यूशन ही क्रिएट हो रहा है, हर जगह पे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। फिर देन मैंने बहुत सारी चीजें ढूंढ के पोल्यूशन के ऊपर इतना सारा सर्च किया। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो 25 वीडियो मैंने पोल्यूशन के ऊपर बनाए हैं, कि कौन से डिसीजेस इसमें से, अलग अलग प्रकार के डिसीजेस क्रिएट होते हैं पोल्यूशन की वजह से, कितने लोग अफेक्टेड है, कितने लोग ये हो रहे हैं। वो जब मैं सोच रहा था तब फिर मैंने जाके इन्वायरमेंटल लीडर्स क्लब का काम शुरू किया, जिसके माध्यम से मुझे लगा कि अभी मैं तो ठीक है, पैसा और बाकी सब चीजें तो मैं ले ही रहा हूँ उस फील्ड से, लेकिन मैं दे क्या रहा हूँ, इन इन रिटर्न में क्या दे रहा हूँ? तो मुझे लगता है कि ये इन्वायरमेंटल लीडर्स क्लब ये मेरा पार्ट है, कि जिसके माध्यम से हम लोग उसको देने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मोड़ पे, और फिर लोगों को साथ में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मैं अकेला कर रहा हूँ, इसके लिए हर एक मिलके, मतलब जैसे आप WWW के माध्यम से कर रहे हो, वैशाली बहुत सारी चीजें कर रही है, मंजरी जी हर जगह पे सपोर्ट करती है, हर जगह पे उनके साथ में होती है जो ऐसा काम कर रहे होते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर अगर ये चीज किया तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी चीज रिजॉल्व हो जाएगी और स्वर्ग बन जाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिटोरिएट डिटोरिएट डे बाय डे, वो चीजें होने ही वाली है, बट उसका जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। एंड वी कैन, मुझे लगता है कि हम लोग अपनी गर्दन सीधी रख पाएंगे हमारे पीढ़ी के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने, कि यस हमने कोई मतलब इसमें ये तो नहीं किया, मतलब हमने एटलीस्ट उसको लेवल में अभी तक रखा हुआ है। सो दैट्स व्हाट इज नीडेड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू हैंड ओवर, राइट? तो दैट्स माय मैसेज। आई सो अग्री, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार हम पढ़ते हैं कि ये जो धरती है वो हमने अपने बच्चों से उधार ली है, और वो सब हम पढ़ते हाँ रहते हैं। हाँ हाँ। लेकिन उसका मतलब क्या है, नहीं जान, हम सही है। वो कोई समझता नहीं है। ये सब शब्द हैं, और ऐसे पढ़ो और स्क्रॉल कर दो या आगे एग्जैक्टली। देखो, मतलब इट्स एज कॉमन एज दैट। राइट। आई थिंक लाइक बच्चे कॉलेज ये सब जो टाइम है, ये बहुत जरूरी टाइम है जब वो ये समझ सकें कि अम, हमें अब डिफरेंट चॉइसेस ही बनानी है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। और हमारे जनरेशन को स्पेशली बहुत जरूरी है कि हमने जो भी नोइंगली अननोइंगली करा है, कंट्रीब्यूट करा है पोल्यूशन में, या द बायोडाइवर्सिटी के डिग्रेडेशन में, या लाइक अगर हम कार चलाते हैं और सड़क पे चलाते हैं तो वो कोई ना कोई पेड़ तो कटा ही हो देगा ही रहा उस है, राइट रोड राइट राइट, बनाने के लिए। डेफिनेटली। टिश्यू भी यूज कर रहे तो भी पेड़ कट रहे हैं। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, मतलब क्या अभी तो नहीं कर सकते, मतलब हम इवन चश्मा लगाए तो प्लास्टिक का ही लगाएंगे हम लोग, नहीं अभी उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या एग्जैक्ट हम कितना सपोर्टिव मोड पे जा सकते हैं, कितना इसको होल्ड कर सकते हैं, वो ही ज्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है अभी के सिनेरियो। सो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं, हाउ कैन वी बी रिस्पॉन्सिबल, कि हमको वांट या नीड, कौन हमारे ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। सो जब छोटे बच्चों के साथ हम बात करते हैं, इवन मेरे बच्चों के साथ या उनके फ्रेंड के साथ, तो मैं हमेशा वांट एंड नीड का ही एग्जैक्टली। एग्जांपल देती हूँ, और उनकी लिस्ट हर चीज वांट में ही होती है। फिर धीरे धीरे जब हम बात करते हैं तो समझ में आता है दिस एक्चुअली आई डोंट वांट इट। सो यू नो हमें वो उनको समझाना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइक यू सेड कंज्यूमरिज्म जस्ट एक क्लिक
एक क्लिक है और सामान घर में आ जाता है. राइट Then राइट राइट packaging राइट. is another problem. So हमारी लाइफस्टाइल ही नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है. वेरी एंड ट्रू. हो सकता है कि हम कुछ इन लोगों को तैयार कर सकें कि अब तुम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ. नहीं गुड. होगा, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए आने वाली जो जनरेशन है, आ, वो अपने जैसे सिर्फ फॉलोअर नहीं है. दे हैव देयर ओन टेस्ट यस. इनटू दैट कि उनको वो चाहिए. ओनली थिंग इज दैट दे शुड एग्री टू दैट. मतलब उसको जब एग्री करते, जब वो देखते कि ये चीजें सही में हो रही है, सो इट शुड बी अवॉइडेड, देन दे विल स्ट्रिक्टली बी देयर अगेंस्ट दैट. मतलब वो चीज होता है, अगर सिग्नल पे पता है कि सिग्नल रेड सिग्नल पे रुकना है, ऐसे सिखाया गया है, तो वो आपको भी बोलेंगे कि पापा या. जाना नहीं है आगे, उनको जाने दो. मतलब दैट इज देयर इन दैट जनरेशन. मेरे जनरेशन में मिडल वाली जनरेशन है कि जो मतलब एडजस्टमेंट 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 इसी मोड पे चल रहा है. इनका अलग है. तो वो मोड पे हमने, हमारा रोल है कि हमको वो देना है. हम जब बिल्कुल. देंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन अपने आप उस मोड पे जाएगा. बिल्कुल. Manjari and Vaishali, do you have any questions? Would you like to ask or share anything before we close today? Manjari or Vaishali? वैशाली, हाउ आर यू? आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. ओके, मैं कोशिश करती हूँ एक ओके. बार. अदरवाइज I will send you a link to our group. You're most यस welcome to join. And यस. then मैं आपको YouTube का वीडियो भेजूंगी. Thank you very much. Really nice, थैंक यू. really nice learning so many things from you. एक थैंक यू सो मच. scientific point of सेम view से. ईयर. You take care. या. Bye bye. थैंक यू. बाय बाय.